the accounts in case of certain categories of persons, they also, in addition to be the need of being maintained by the assessees, they also may need to be audited by the professionals, that is chartered accountants, and who need to certify the records of the books of accounts of the taxpayer before the filing of return for that particular previous year or the relevant previous year by the assessee could be accomplished. So सबसे पहले हम बात करते हैं maintenance of accounts or books of accounts by certain persons who are carrying on either a business or a profession. The section which deals with the same is section 44 AA. ठीक है, this section basically talks about the requirement of maintenance of books of accounts by different categories of assessees. And what does it says? Basically, if we talk about books of accounts, they are required to be maintained by people under different laws. It could be in context of Income Tax Act, it could be in relation to the requirements being placed by Companies Act 2013, and it could be on account of requirements placed under GST Act and so on, and any other statutory obligation. So the requirement for maintaining proper records and books of accounts may be mandated by either of these legislations or any other prescribed legislation. What exactly is the purpose of maintenance or the prescription of maintenance of books of account is to ensure the transparency in the conduct of the operations of and the true disclosure of income related to that particular business or profession. Means कि जो assessee है, जो taxpayer है, वो चाहे corporate entity है चाहे non corporate entity है, if that is earning income above a prescribed threshold or on a particular prescribed levels limits, then there ought to be a transparent mechanism of ensuring what had been the earnings of the being in a particular business or profession and what have been the rightful expenses of that particular business or a profession. So that has been the primary premise behind the requirement of maintenance of books of accounts. Now basically this section talks about two different specializations or contingencies or two-way classification. One relates to persons, all those persons who are carried out a specified business, all those categories of persons who are carrying on a specified profession. ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, वो किस में है? सब क्लॉज 1 में. सेक्शन सेम रहेगा, सेक्शन 44 AA, उसके अंदर सब क्लॉज आ जाएगा 1, सब सेक्शन 1. सो उनके केसेस में ये क्या कहता है? सबसे पहले हमारी टर्म जो हमने समझनी है वो है स्पेसिफाइड प्रोफेशन होता क्या है. Because this subclause 1, the subsection 1, it applies basically only on persons who are carrying out a specified profession. And what does the specified profession or business hold for? It includes the medical field, the engineering field, architectural, accountancy, persons undertaking technical consultancy, persons doing the job of interior decoration, or any other notified profession. And what does these all other notified professions may take the form of? They could be authorized representative, they could be film artists, they could be company secretaries, and they could be people belonging to information technology, and all these have been prescribed under this subsection 1 specifically. So any person who is indulged in or who is engaged in any of these particular fields or domains shall qualify to be a person carrying on a specified profession and would be mandated as per the requirements of this subsection 1. Now what does it say? It says that in this case, which case? The persons who are carrying on these specified professions. In such case, if annual gross receipts of 1 year or all 3 years, whose 3 years? The previous year that we are talking about, उससे पीछे के 3 साल, जिस साल की हम इनकम की बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर एज वी टॉक्ड. सो उससे पीछे वाले 3 सालों तक हम बात करेंगे. अगर उससे पीछे वाले 3 सालों में इफ एनी ऑफ देम और ऑल ऑफ देम, ठीक है, उन 3 सालों में अगर उस एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट्स उस कैटेगरी ऑफ पर्सन की एंटिटी की 1.5 लाख रुपीस से एक्सीड नहीं करती, तो अगर वो 1.5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो इन केस दैट केस द पर्सन है दैट कंसर्न पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स
as may enable the corresponding income tax assessing officer to compute his true taxable income under the act. सिंपल भाषा में बात करें तो अगर किसी की जो इनकम जो है ग्रॉस रिसिप्ट्स जो हैं वो 1.5 लाख रुपीस से ज़्यादा नहीं है, कौन से ईयर में, इन एनी ऑफ द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. सो जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे पीछे के 3 सालों में किसी साल में भी या सब में या किसी साल में भी अगर उसकी ग्रॉस रिसीप्ट्स 1.5 लाख से कम रही हैं तो उस टैक्स पेयर्स को अकाउंट मेंटेन्स करने पड़ेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे उस तरीके से ताकि असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगे उसके अकाउंट्स चेक करने के लिए या उसकी ट्रू इनकम एग्जामिन करने के लिए, सो दैट अकाउंट शुड इनेबल दैट असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज और अराइव एट हिज और हर ट्रू टैक्सेबल इनकम. ठीक है जी. दूसरा पॉइंट ये क्या कहता है कि अगर हम पहले पॉइंट की ही अभी बात करें तो बेसिकली इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर कोई नया एस्टेब्लिश हुआ है बिजनेस, कोई नया प्रोफेशन एस्टेब्लिश हुआ है, सो उस केस में जिस साल वो एस्टेब्लिश हुआ वो तो अभी नया एस्टेब्लिश हुआ, उसके केस में 3 साल तो पिछले आएंगे नहीं. सो उस केस में भी कंडीशन जो है 1.5 लाख की ही रहेगी, बट जो पीरियड है वो हो जाएगा रेलिवेंट टू द पीरियड ऑन विच इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड. सो उस केस में भी लिमिट 1.5 लाख की ही रहेगी ग्रॉस रिसिप्ट्स की, बट जो पीरियड है वो उतना हो जाएगा जिस डेट को, जिस पर्टिकुलर पीरियड को वो बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है. और उसको करना क्या है, उसको सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. कोई प्रिस्क्राइब्ड रेलिवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस ये कंडीशन मैंडेट नहीं करती कि ये चीज़ें सारी मेंटेन करनी होंगी, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होंगी. इट सिंपली सेज such books of accounts means any types of books of accounts that may enable the tax officer to judge the true income of that particular entity. ठीक है जी. Then अगर हम बात करें, if however gross receipts of that particular entity is more than rupees 1.5 lakh in all the 3 previous years, ठीक है. सो उस केस में क्या होगा, या नया बिजनेस है तो उस केस में भी 1.5 लाख से अगर ज़्यादा है उसकी उस प्रीवियस ईयर में जो है वो ग्रॉस रिसीप्ट्स, सो उस केस में सच पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस रूल दैट इज 6F सबसेक्शन 2. सो ध्यान देने वाली बात क्या है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन की जब हम बात कर रहे हैं जिसमें ये सारी कैटेगरीज आती हैं, हम देखेंगे कि मॉनेटरी लिमिट क्या है ग्रॉस रिसीप्ट्स की. अगर तो मॉनेटरी लिमिट 1.5 लाख से कम है, ठीक है, तो उस एंटिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है. कोई फॉर्मेट नहीं है कि कौन कौन सी मेंटेन करनी है, कैश बुक बनानी है, जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बट ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर को अगर ज़रूरत पड़े तो वो इट शैल बी able to analyze or compute the true taxable income as has been contested by that particular person. ठीक है. बट अगर ग्रॉस रिसीप्ट्स 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, if they are likely to if they exceed or are likely to exceed 1.5 lakh in all the 3 relevant previous years, जिस साल की बात कर रहे हैं उसे पीछे के 3 सालों में 1.5 लाख से तीनों सालों में ही वो ज़्यादा है. अगर किसी एक में भी कम है तो वो ऊपर वाली कंडीशन में फॉल कर जाएगा जो फर्स्ट पॉइंट अभी हम बात कर रहे हैं. बट अगर तीनों में ही ऑफ ऑल 3 प्रीसीडिंग ईयर्स की अगर हम बात करें, पिछले तीनों सालों में ही, जिस साल की इनकम की बात कर रहे हैं उससे पीछे के तीनों सालों में ही अगर वो 1.5 लाख से ज़्यादा है या नया एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो उस केस में भी अगर 1.5 लाख से ज़्यादा रिसिप्ट्स हैं तो उस पर्सन को अपनी अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. बट इस टाइम पे उसका जो है एक प्रॉपर रूल आ जाएगा और एक डेजिग्नेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी जो उसको मेंटेन करनी ही पड़ेंगी. वो कौन सी हैं? रूल डील करता है 6F सबसेक्शन 2, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी बुक्स हैं जो उसको मेंटेन करनी पड़ेंगी. कैश बुक बनानी पड़ेगी, जर्नल बनाना पड़ेगा अगर वो मर्केंटाइल बेसिस पे अपने अकाउंटिंग करता है तो, लेजर बनाना पड़ेगा,
कार्बन कॉपीज रखनी पड़ेंगी बिल्स की, अगर वो बिल जो है या रिसिप्ट है 25 रुपये से ज़्यादा की इशू की गई है तो ओरिजिनल कॉपीज़ जो है वो बिल्स की रखनी ही पड़ेंगी, सारे रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे टैक्स पेयर को। सो अगर वो रूल 6F सब्स क्लॉज सेक्शन 2 में फॉल करता है, मतलब ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में उसको ये सारे रिकॉर्ड्स रखने ही पड़ेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सो दैट इन प्रिस्क्राइब्ड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। अब इसी के आगे जो रूल 6F है उसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन इन सब फील्ड्स में से जो हमने ऊपर स्पेसिफाइड प्रोफेशन में बात की, अगर इनमें से सिर्फ कोई मेडिकल फील्ड में है, ठीक है, बाकियों के लिए तो ये सारे लागू हो गया रूल 6F सबसेक्शन 2, बट अगर कोई पर्सन है जो कि मेडिकल फील्ड की मेडिकल प्रोफेशन को कैरी आउट कर रहा है, सो उसके केस में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कौन सी हैं? एक तो डेली केस रजिस्टर बनाना है उसको फॉर्म नंबर 3C में, और एक उसको इन्वेंट्री बनानी है अंडर ब्रॉड डिफरेंट हेड्स ऑन द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डे ऑफ द ईयर, मतलब स्टार्ट में क्या थी और साल के एंड में क्या थी। प्रॉपर इन्वेंट्री स्टॉक बनाएगा वो, प्रॉपर ड्रग्स का, मेडिसिन का और कंज्यूमेबल एसेसरीज दैट कुड हैव बीन यूज्ड इन हिज और हर प्रोफेशन इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कैरिंग ऑन अ मेडिकल प्रोफेशन। सो मेडिकल प्रोफेशन के केस में ये 2 एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आ जाएंगी। अदरवाइज फॉर ऑल अदर रूल 6F सबसेक्शन 2 is applies and the following set of records or accounts, set of accounts is supposed to be maintained under section 44AA. Then एक इलस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट से 2-3 इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं इस नोशन को जो अभी हमने डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर कुमार हैं, ठीक है, वो एक फिल्म आर्टिस्ट हैं। वो क्या है? एक फिल्म आर्टिस्ट हैं। सो मिस्टर कुमार जो एक फिल्म आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो अब कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते अपने पास सेक्शन 44AA के कॉरस्पॉन्डिंग जो, ठीक है, प्रोविजंस हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो प्रोविजन हैं सेक्शन 44AA की, ये उसको लागू नहीं होती, बिकॉज ही इट इज डज नॉट are applicable to his profession specifically, that is being of a film artist. So is that person correct? Let's see it. The provisions as we talked relating to maintenance of books of accounts, they can be classified basically primarily for 3 entities. Provisions related to person who are specified in specified profession, provisions relating to person who is engaged in a non-specified profession, जो पिछले सेगमेंट में बात की है वो सारा स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, जो उसके अलावा कोई बिजनेस या प्रोफेशन आएगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। ठीक है जी। और प्रोविजन रिलेटेड टू पर्सन हु इज एंगेज्ड इन स्पेसिफिकली अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, पहली 2 प्रोविजन प्रोफेशन के लिए हैं, तीसरी है बिजनेस के कॉरस्पॉन्डिंग। सो अगर हम बात करें सेक्शन 44A की और रूल 6F की जिसकी अभी हमने बात की, जो प्रोफेशन है फिल्म आर्टिस्ट का, वो भी स्पेसिफाइड प्रोफेशन का पार्ट माना गया है। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, स्पेसिफाइड प्रोफेशन ऑल्सो इंक्लूड्स फिल्म आर्टिस्ट एज अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन। सो जो प्रोविजन है इस सेक्शन की 44AA की, वो उस पर एप्लीकेबल होंगी एंड ही इज सपोज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ईदर प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 6F और सिंपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे हमने पहले पॉइंट में बात की थी, बट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन द डिटेल्स ऑफ बेसिकली द ग्रॉस रिसीप्ट्स दैट ही मे बी रिसीविंग। सो उसकी ग्रॉस रिसीप्ट 1.5 लाख से कम है या ज़्यादा है, उसके डिपेंडेंट होगा कि वो स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही बनाएगा, जैसे कि अभी हमने बात करी कैश बुक, जर्नल, लेजर, सो ऑन, कार्बन कॉपीज, ओरिजिनल बिल्स, या वो सिंपल कुछ ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट बना के रखेगा ताकि असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर सके। वो किस पे डिपेंड करेगा? उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स कितनी थी, कौन से साल में, प्रीवियस ईयर जिसकी बात कर रहे हैं उससे पीछे के 3 सालों में। ठीक है जी। सो मिस्टर कुमार इन असर्टिंग दैट as a film artist he is not supposed to liable under section 44AA is not correct. ठीक है जी। देन सेकेंड हम बात करते हैं सर्कमस्टांसेस की, जहाँ पर जो मेंटेनिंग दीज प्रिस्क्राइब्ड बुक ऑफ अकाउंट्स जो है
जो अभी हमने बात की वो मैंडेटरी नहीं है। दे शैल नॉट बी नेसेसरी अंडर सेक्शन 44AA। वो कौन से केसेस हैं जहां पर ये जो है प्रिस्क्राइब्ड बुक ऑफ अकाउंट्स ही बनाना ज़रूरी नहीं है। रूल 6F सबसेक्शन 2 जो है वो नहीं लागू होगा कि अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की इसी सेक्शन में, इसका जो सब पार्ट 2 है, सब सेक्शन 2 है इसका, ठीक है, वो बात करता है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की। मतलब यहाँ वो सारे नॉन स्पेसिफाइड जो कोई ऐसे प्रोफेशन हो जो इन सब कैटेगरीज में फॉल नहीं करता, जो अभी हमने बात करी, या बिजनेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा सेक्शन लागू होगा, सब सेक्शन 2, ठीक है जी। उसके केस में क्या है वो बोलता है, दैट इज बेसिकली दे टॉक अबाउट कि अगर जो टोटल इनकम है फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इफ इट एक्सीड्स ₹1,20,000 स्पेसिफिकली, ठीक है। सो उस केस में क्या है, अगर वो 1,20,000 से ज़्यादा है इनकम की बात कर रहे हैं, या सेल्स या ग्रॉस रिसीप्ट्स की बात कर रहे हैं, वो 10 लाख से ज़्यादा है in any of the 3 years preceding the relevant previous year, so that person shall keep and maintain books of accounts and all other documents as may be required to enable the assessing officer to compute his true income। जैसे वहाँ पर 1.5 लाख की पहले बात की थी सिंपल टर्म में, ठीक है, यहाँ 2.5, और इस केस में क्या हो जाएगा 1,25,000 अगर वो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, अगर वो प्रोफेशंस नहीं है जो हमने प्रोफेशंस बात की थी स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। सो उनके केस में उनके अगेंस्ट अगर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है वो उन कैटेगरीज में फॉल नहीं करता। यहाँ बिजनेस की जब हम बात करेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेन की बात करेंगे तो उस केस में ये सबसेक्शन 2 जो है वो लागू होगा। एंड व्हाट डज इट सेज कि इफ इनकम एक्सीड्स 1.2 लाख or total sale or gross receipts exceeds ₹10 lakh, then in any of the 3 preceding years immediately preceding the relevant previous year, so जिस साल की बात कर रहे हैं उससे पीछे के 3 सालों में, so that person shall require to maintain books of accounts in any format or in specified not so specified format, कि ताकि असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे तो उसकी इनकम कंप्यूट करी जा सके, ठीक है जी। और अगर बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो उस केस में ईदर इफ इट इज द इनकम इज सपोजिंगली लाइकली टू एक्सीड 1.22 लाख, और जो सेल्स हैं या ग्रॉस रिसीप्ट्स हैं वो लाइकली हैं कि 10 लाख से ज़्यादा हो जाएंगी, या जो पर्टिकुलर 3 सालों में जो रिसीप्ट्स थी वो 1,20,000 से ज़्यादा हो जाएंगी, तो उस केस में जो है मैंडेटरली उसको मेंटेन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज में इनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम। हालांकि जब हम इस सब सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं जहां पर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं प्रिस्क्राइब्ड है इन केसेस में कि उसको ऐसी ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ठीक है। जो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की बात कर रही थी तब तो हमें रूल 6F सब क्लॉज सेक्शन 2 में स्पेसिफाइड बुक्स पता है कि कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है। इन केसेस में स्पेसिफाइड बुक्स जो है वो एक्सप्लिसिटली कोई भी मार्क नहीं करी गई कि दीज आर द बुक्स दैट ओनली हैव टू बी मेंटेन्ड। हाउएवर अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें जो प्रोफेशन या बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं कोई इंडिविजुअल उसकी बात कर रहे हैं या HUF की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी की या किसी और फॉर्म की कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे, सो उस केस में जो मॉनेटरी लिमिट हमने अभी बात करी है सेल्स की एज वेल एज इनकम की, वो इंक्रीज हो जाएंगी। 1,20,000 वाली हो जाएगी 2.5 लाख रुपए बन जाएगी। अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हमने 1,20,000 को पढ़ना है 2.5 लाख। और अगर हम रिसिप्ट्स की बात करेंगे और किसकी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल या HUF की, तो वो जो 10 लाख की लिमिट है वो भी बढ़ के कितनी हो जाएगी 25 लाख रुपए, ठीक है जी। सो ये जो है वो रिविजन्स हैं जो इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाएंगी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इंडिविजुअल और HUF इन एनी ऑफ दीज केसेस। एक और 2 इलस्ट्रेशंस जो हम पढ़ते हैं जिससे हम देखते हैं कि बेसिकली कैसे हम इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन का ही बात किया था। कोई मिस खुशहाली हैं, वो एक टीचर हैं and she does not know whether the provisions of section 44AA relating to maintenance of books of accounts are applicable to her or not, since she being a teacher in herself, ठीक है।
So she approaches you for an advice कि whether this section 44AA is applicable to me or not so. As a consultant, what do you will you advise Ms. Kushali in this regard? So let's see what does the solution says. जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि हमने बात की थी, 3 कैटेगरीज को अप्लाई करती हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड बिजनेस. ठीक है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन आ जाता है? 44AA1. ठीक है, और दूसरा आ गया नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड बिजनेस, और इनके लिए कौन सा आ गया? 44AA सबसेक्शन 2. ठीक है जी. सो इनके लिए ये लागू होता है. सो अगर हम बात करें सेक्शन 44AA की ओवरऑल जनरल बेसिस पे, ठीक है, सो उस केस में इन एडिशन टू, और जब भी हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे, इस सेक्शन में कोई भी हमने पॉइंट समझना है, तो साथ में हमें रूल 6F जो है वो इनकम टैक्स रूल्स का, उसको रेफर करना ही पड़ेगा. ठीक है जी. दैट हैज़ टू बी रेफर्ड अलॉन्ग विद द सेम वाइल इंटरप्रेटिंग और मेंटेनिंग एनी सेक्शन अंडर दिस रिगार्ड. ठीक है जी. सो अगर हम बात करें, दीज हैव बीन द स्पेसिफाइड प्रोफेशंस दैट वी हैव टॉक्ड अपॉन. ठीक है, ये सारा पॉइंट हमने स्पेसिफाइड प्रोफेशन में बात किया था. तो यहाँ पर कहीं भी टीचर का पॉइंट नहीं है, कहीं भी टीचर जो है वो इसमें मेंशन्ड नहीं है कि टीचर भी इसमें जो है स्पेसिफाइड प्रोफेशन में फॉल करता है. तो वो किस में जाएगा? जो हमने नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन. तो वो क्या हो गए? जितने भी बाकी बचे प्रोफेशन जो वहाँ पर नहीं आ रहे, वो किस में जाएंगे? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में. या बिजनेस जो है वो भी नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में. तो अगर हम बात करें इस केस में, सो प्रोविजंस जो हैं वो उसको एप्लीकेबल होंगी. क्यों? क्योंकि ऑल्दो शी इज़ नॉट इन अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन बट स्टिल शी क्वालिफाइज टू बी इन अ नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन. So she would be liable to maintain her books of accounts or any salary documents, and so as enable the assessing officer to compute her true taxable income under the act. And she may not be required to maintain at all any books of accounts depending upon the gross receipts from such profession that she may be receiving depending upon the past 3 years relating to the previous year. So पिछले साल से 3 सालों में उसकी ग्रॉस रिसीप्ट्स क्या थी हर साल, वही जो हमने कंडीशन की थी 1.5 लाख वाली. सो अगर वो डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट एक्सीडेड दोज लिमिट और इट डज नॉट एक्सीड दोज लिमिट्स, so that will mark whether she will be maintaining the books of account in a proper format or she can anyhow maintain books of accounts in any literal format. But although she is a non-specified profession, she is required to maintain some books of accounts, be it in the nature of any expenses or income statement that she may be earning. Then एक और illustration करते हैं. कोई मिस्टर राजा हैं, वो अपना एक प्रोप्राइटरी बिजनेस रन कर रहे हैं अंडर द नेम ऑफ राजा एंड कंपनी. नाउ ही डज नॉट नो वेदर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन दैट इज 44AA रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट दे आर एप्लीकेबल टू हिम और नॉट सो. ठीक है. So again he approaches you for an advice on the same. As a consultant, how do you advise Mr. Raja in this regard? सो प्रोविजन सेम आएंगी. सबसे पहले हमने 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस, कि इन तीनों में से ये पर्सन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है. तो हम देखते हैं कि वो क्या है, उनका एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है, एक बिजनेस है. ठीक है. सो ही वुड बी गोइंग अंडर द नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस कैटेगरी. जो कौन सा सेक्शन इस केस में एप्लीकेबल होगा? इस केस में उसको सेक्शन जो एप्लीकेबल होगा 44AA सबसेक्शन 2. ठीक है जी. सो जो प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे आर एप्लीकेबल टू पर्सन हु इज इवन एंगेज्ड इन अ बिजनेस. ठीक है ना. सो ये सेक्शन 44AA उस पर एप्लीकेबल होगा. और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी मेंटेन करेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखेगा, कैश बुक, लेजर और जर्नल, ये सारी चीज़ें मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, बिल्स ऑफ कॉपीज, ओरिजिनल बिल्स, ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा? इट ऑल ऑफ दिस विल बी डिपेंडेंट अपॉन और कंटिंजेंट अपॉन द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम एंड द ग्रॉस रिसीप्ट्स दैट ही मे बी अर्निंग फ्रॉम सच बिजनेस. बट कौन से टर्म पे? पिछले साल जो प्रीवियस ईयर है उससे पिछले प्रीसीडिंग 3 सालों के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है जी. देन अ फाइनल इलस्ट्रेशन ऑन दिस काउंट. सम मिस्टर कपूर इज वर्किंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है.
सो उनकी डिटेल्स ऑफ एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट्स हमारे पास हैं, जो उनके प्रोफेशन से उनको मिल रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 12-13 में उनको इतना अमाउंट मिला 8,84,000, 11-12 में उससे पिछले साल में 6,52,000, और फाइनेंशियल ईयर 10-11 में मिला था 5,25,000 अमाउंट, जो प्रोफेशन से उनकी रिसिप्ट हुई, उनको अर्निंग्स हुई। नाउ दिस मिस्टर कपूर डज नॉट नो वेदर ही इज लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स अंडर दिस हेड और नॉट सो। एज अ कंसल्टेंट ही अगेन सीक्स योर एडवाइस, सो हाउ विल यू, what exactly would you advise him upon? सो आइए देखते हैं। सो एनी पर्सन हु इज़ कैरिंग ऑन अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एनी हाउ इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वी टॉक्ड। सो अगर हम कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, ठीक है ना, सो उस केस में क्या था, क्या कंपनी सेक्रेटरी जो है क्या वो स्पेसिफाइड जो है वो प्रोफेशन में आता है? इफ़ दैट पर्सन इज़ प्रोवाइडिंग अ टेक्निकल कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल ऑफ अकाउंटेंसी, इज इट सो? यस सो। सो उस केस में क्या है, सो हेंस इन दिस केस बेसिकली द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जैसे हमने बात किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बात होती है प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड सो ऑन, ठीक है। सो उस केस में हम क्या देखेंगे फिर कि उसकी रिसीप्ट्स जो हैं वो ग्रॉस रिसीप्ट्स हैं 1.5 लाख एक्सीड कर रही हैं ऑल 3 रेलिवेंट ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सो जिस साल की बात कर रहे हैं उससे पीछे के 3 सालों में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर था 13-14, हमारा यहाँ पर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर था 2013 एंड 2014। सो हमारे पिछले 3 साल कौन से हो गए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग, दीज आर द 3 ईयर्स, ठीक है। सो इन दिस केस, इन द गिवन केस एज वी कैन सी, जो ग्रॉस रिसीप्ट्स हैं पिछले 3 सालों में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तीनों सालों में ही 1.5 लाख से ज़्यादा हैं, और 1.5 लाख जो लिमिट है, ठीक है जी। सो उस केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी अंडर रूल 6F, ठीक है। सो जब 1.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट आ गया, ठीक है, ग्रॉस रिसीप्ट्स का, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? रूल 6F तो एप्लीकेबल होगा, साथ में कौन सा? सबसेक्शन 2, मतलब वो स्पेसिफाइड बुक्स जो थी, हमने उसमें बात की थी, कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स और ओरिजिनल कॉपीज, ये सारी चीज़ें उसको मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी इन दिस केस पर्टिकुलरली, ठीक है जी। सो फाइनली हम बात करते हैं अगर कोई एंटिटी, ठीक है जी, द फाइनल पॉइंट बेसिकली दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई एंटिटी जो है वो डज नॉट कीप इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्दो इट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर लॉ। कोई ऐसी एंटिटी है जिसको सेक्शन 44AA के अंदर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, बट दे फेल टू डू सो, सो व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंसेज? सेक्शन 271A जो है वो प्रिस्क्राइब करता है पेनल्टीज कितनी लगेंगी, क्या होगा, एंड इट द क्वांटम ऑफ पेनल्टी दैट कुड बी एप्लीकेबल इज अप्रॉक्सीमेटली ₹25,000 दैट शैल बी एप्लीकेबल ऑन सच पर्टिकुलर एंटिटीज कंसर्न, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हालांकि कुछ बिजनेसेस की अगर हम बात करें जो कि फॉल करते हैं 44 सेक्शन AE में या BB में या BBB में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से इन सेक्शंस में कौन कौन से बिजनेसेस की बात की जाती है? सिविल कंस्ट्रक्शन है, कोई प्लाइंग ऑफ गुड्स है, मतलब ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है गुड्स की, लीजिंग ऑफ गुड्स, या कोई रिटेल का बिजनेस है, या मिनरल ऑयल्स का जो एक्सप्लोरेशन है, जो हाइड्रोकार्बन्स का, या पावर प्रोजेक्ट्स हैं टर्न की, उनकी बात कर रहे हैं। सो उन केस में अगर कोई अपना जो प्रॉफिट है वो क्लेम कर रहा है लोअर देन द प्रॉफिट विच इज़ कंप्यूटेड एज पर दीज सेक्शंस, सो उस केस में भी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने मेंटेन करके रखने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 44